स्लाइड्स में है. You can read the first slide. You can start reading. You have like 3 minutes to finish the slide. मैम आप प्लीज नेक्स्ट टाइम से फोन चेंज कर देना, मुझे ऐसे फोन के अंदर घुसना पड़ता है. अच्छा, इस फोन के साथ इशू है? हाँ. ठीक है, I'll change it. थैंक यू. Done? This slide? Yes. Okay. लास्ट स्टेटमेंट क्या था? Okay.
जस्ट रीड द लास्ट स्टेटमेंट। द शील्ड से लेके पढ़ो, फिर मैं स्विच कर चेंज करूँ। हाँ ठीक है, into Greek and Let me know when you're done.
Shall I move to the next page? Yeah. Okay. Yes. This. Done. Yes, ma'am. Okay, so how does it look like? ये पैसेज पढ़ के क्या लगा? कैसा कैसा पैसेज है ये? मतलब it's trying to say कि मतलब एक controversy सा है कि these two works, it's possible that ये there are like it's not written by one person. So उसी के reasons बता रहा है कि क्या क्या हो सकता है, why मतलब arguments दे रहा है उसके लिए support करते हुए. Right. Anyone else? That what did you feel about this? Not just the meaning, but how is the passage per se? And if you get such a passage, what would be your approach? So when you read this passage, क्या पढ़ के ऐसा नहीं लगा कि इतना क्या ये let's say if I go here, हाँ इतना सब यहाँ क्या लिखा हुआ है कि literary style and then he is talking about हाँ यहाँ पे बहुत सारा था Iliad's laudatory Daloy manifold कुछ यहाँ पे कुछ अजीब से वर्ड्स थे राइट सो प्रोबेबली हम बहुत लोगों ने पहली बार सुने होंगे Phoenician Carthage in the 7th century. So lot of things to remember, lot of difficult words, right? So something let's say जो कि बिल्कुल भी इसमें काफी सारी चीजें familiar नहीं है. Lot of people would not know who is Homer. Lot of people would not know what a dramatic dialogue is, right? But should we be worried about all these things? No, not really. Yeah, not really. You don't really have to be worried about so many things कि अगर यहाँ पे hexameters लिखे हुए हैं या rhyming लिखी हुई है, Homer लिखा हुआ है, heroic legends लिखे हुए हैं, ठीक है मतलब अगर कुछ चीजें मुझे नहीं भी समझ में आ रही, but you do understand the context, right? Context समझ में आ रहा है कि हम Homer के बारे में बात कर रहे हैं, उसके दो epics के बारे में बात कर रहे हैं, but we then the author is actually questioning कि Homer एक जना है, बहुत सारे लोग को Homer बोल सकते हैं. Just for the fact because Homer can be it's Homeros. Blind. Yeah, it's a dialectic. Old man singing poems. Yeah, it's a blind man singing या फिर blind man reciting something. So that is what. फकीर होता है basically. हाँ, basically या फिर if you have heard the tradition of bards. हाँ वही bards and फकीर. हाँ. So
इन सब चीजों के बारे में बात हुई तो पढ़ने के बाद बहुत सारे लोगों को ऐसे लगा होगा कि मुझे समझ में आया है, मुझे थोड़ा समझ में आया, थोड़ा नहीं आया लगा. I mean, were you satisfied after you read this? Sort of, yeah. Not me. Not you, right? पढ़ने के बाद शायद ये लगा कि कुछ कुछ चीजें समझ में आई, कुछ नहीं आई. राइट, ऐसा कई बार होगा आपको ऐसे पढ़ने के बाद, बट डोंट रियली बी वरिड अबाउट इट, क्योंकि मुझे तो क्वेश्चंस आंसर करने हैं ना. सो आई गो टू क्वेश्चंस नाउ. यू लुक एट क्वेश्चंस, राइट. सबसे पहले तो मैं क्वेश्चन ध्यान से पढ़ूंगी. रीड दिस क्वेश्चन प्रॉपर्ली. विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी रीजनेबली इन्फर्ड. तो सबसे पहले तो यहाँ पे हम कैन नॉट ध्यान से पढ़ेंगे. कैन नॉट मतलब जो नहीं इन्फर कर सकते, राइट. अब नॉट इन्फर्ड में हम ये देखेंगे कौन से इन्फर कर सकते हैं, जो बच जाएगा वो मेरा आंसर होगा. ठीक है, तो पहली स्टेटमेंट देखो. बिफोर द 12th century BC, the use of syllabic writing existed in ancient Greece. चलो देख लेते हैं. ये था मैम 8 लिखा था. हाँ 8 लिखा था. 8 होना चाहिए था वो. हाँ, तो 8 लिखा था, तो 12 से पहले भी एग्जिस्ट करते हैं. कौन सा, एक मिनट. देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ना. So I'll show you the question. First statement is before the 12th century BC, the use of syllabic writing existed in ancient Greece. No. It can 12th to 8th BC में डेवलपमेंट हुआ है ना ग्रीक लैंग्वेज का सिलेबिक का. हाँ, तो 8th तक जाके फिर हुआ है, उसके बाद से यूज होना शुरू है. सो दिस कैन बी इन्फर्ड. Can be inferred. Second देखो. Phoenician traders flourished in Greece at the time the Homeric epics were composed. Can be inferred because they have been told as garment, like skilled workers, and so they flourish and can be inferred, I think. कहाँ से? Because they are being shown as the persons who are, doing the tricks, and like they're the tricksters. Okay. And What about C? Greek, Roman, and Romans can be traced back to. हाँ, ये तो clearly बोला ही हुआ है. Okay. Next, Iliad and Odyssey are purely oral poetic speech set to rhyme. ये नहीं, ये बोला नहीं है. ये Set नहीं to rhyme तो कहीं नहीं था. Exactly. Yeah, not. देखो ये तो लिखा है कि they were composed in oral poetic speech, right? But that was in the traditional meter of unrhymed hexameter. ऐसा कहीं कुछ लिखा हुआ था. अनराइम्ड वाली एक चीज क्लियरली लिखी हुई है आपके पैसेज में. हाँ, कि ये लोग अनराइम, मतलब जो होमरोस थे वो लोग अनराइम्ड उसमें गाते थे ना, हेक्सामीटर्स में. एग्जैक्टली. तो मैंने सारे ऑप्शंस देखे, मुझे ये देखना था जो इन्फर मैं नहीं कर सकती. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एक मैं क्वेश्चन ध्यान से पढूं, और इस टाइप के क्वेश्चंस में अगर याद रह जाए तो सही है, अदरवाइज हमें कभी कभी वापस पैसेज पे जाके भी देखना पड़ता है. ठीक है मैम. हाँ. जो सेकंड पॉइंट है उसमें हम वो पैसेज में वी टॉक्ड अबाउट these were skilled craftsmen. They've not talked about it's not stated that they were traders who were flourished in Greece at the time of जब ये But they said no कि वहाँ पे they were like tricksters and they were clever and they went into the economy of. they've talked about being craftsmen, right? हाँ, but then they वहाँ पे एक जगह लिखा हुआ कि they entered the economy very well, ऐसा कुछ लिखा हुआ था. So which यहाँ means पर कॉमर्स की बात हो रही है. हाँ, कॉमर्स में जहाँ पे था complete penetration of into Greek commerce. वहीं पे लिखा था मैम, पीछे ही था. Reflecting the comparative penetration into Greek commerce by traders. From the Phoenician currency. ठीक है. और दूसरी चीज, I think Punya was talking. Yes. हाँ, सेकंड चीज पुण्या, इसमें बी में अगर मैं थोड़ा सा सोच भी रही हूँ है या नहीं है, मैं देख लूंगी. डी तो मैं इन पर बिल्कुल ही नहीं कर सकती. राइट. सो इफ इट्स अबाउट सेविंग टाइम, आई थिंक डी बहुत क्लियरली मार्क कर सकते हैं. ठीक है. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन.
A. Yeah, I think it's A. A. All of you A. Why not D? That is a side thing. वो मतलब it's part of the argument कि why. But Okay, let's see. सबसे पहला जो आपका statement है, there could have been many Homers, old and often sightless, wandering reciters of heroic legends. So, just tell me something. So, is it a generalized statement, or is it something specific to the passage in question? See, let's think of it. जो मेरा passage है, it's specifically about Iliad and Odyssey, isn't it? B लग रहा है ना? तो first तो बहुत ज़्यादा generic नहीं हो गया? अच्छा. तो first तो नहीं है, और बताओ. मैम B वाला second. इसलिए नहीं लग रहा because then Arrhenius ठीक है, but it might be possible कि दोनों ही शायद एक है. उसने पक्का तो नहीं बताया. उसने ये भी तो see attributing the composition of the Iliad and Odyssey to one Homer is Arrhenius. ये तो उसने end में clearly बोल ही दिया है कि it's Arrhenius. उसने ये नहीं कहा कि उनको नहीं आप दे ही नहीं सकते. You cannot attribute it to one Homer. But Arrhenius तो है. Error हो सकता है हाँ. There can be an error. क्योंकि बाकी ऑप्शंस भी आप देख लो. A और B में ही था confusion, but ए के साथ प्रॉब्लम सिर्फ B वाला is too narrow, as in वो लिखा है क्या? अब दिखाना. क्या? हाँ, लास्ट पैराग्राफ नो, ये वाला आप पूरा पढ़ लो ना. Although each became known as Homer, it may be that Homeros was a dialectal word for a blind man. So thus there could have been many Homers. The two epics ascribed to Homer, however, have been highly prized. फिर वो थोड़ी सी एंड में तारीफ भी कर देता है, वो बात अलग है. बट वो क्लियरली कहता है कि मे बी बहुत सारे होमर्स थे. That's what ना, because A वाला तो सुनकर B में ये हो रहा है कि maybe in. रुको. Find the better answer for me. वही मतलब generic वाला इसीलिए चूज किया because B वाले में ये लग रहा है कि because the writer is using words like maybe, could be, है ना, मतलब वो बस options दे रहा है. तो this statement is very authoritative कि नहीं, ये तो wrong ही है वो वाला करना. If he writes कि नहीं, wrong approach. That's a wrong approach towards RC. I'll tell you why. C और D definitely मेरे आंसर्स नहीं है. हाँ, वो तो है ही नहीं. बचे A और B. A इतना ज्यादा जेनरिक है, राइट, कि आपने उसमें रिसाइटर्स ऑफ हेरोइक लेजेंड्स आपने सभी ले लिए. मतलब there is no particular thing about, maybe we are talking about the Western literature or Greek literature. I don't know what am I really talking about. Right? वो पॉइंट तो मैं समझ गया. तब कि A is too generic. रुको, सुनो. When I cannot mark A, the only option I'm left with is B. And we can definitely be inferred from the passage क्योंकि यहाँ लिखा है to one Homer is Arrhenius. इसमें error है. यहाँ कहीं ये नहीं बोला कि it's definitely cannot be said कि A Homer एक था या नहीं था. अगर ये लिखा होता कि it's definitely wrong, तो वो मेरा आंसर नहीं था. अदरवाइज मतलब आई एम थिंकिंग ऑफ एरेनस एज बीइंग डेफिनेटली रॉन्ग. लाइक हाँ अगर वहां लिखा कि माइट बी एरेनस, तो देन आई वुड हैव श्योरली गॉन फॉर बी. मतलब मैं देखो, आई अग्री दैट कुड हैव बीन अ बेटर आंसर, बट अगर चीजें इतनी सिंपल हो गई तो आपको एग्जाम में क्यों आएंगी? ओके. हाँ, सो इसलिए व्हेन यू आर एक्चुअली थिंकिंग अबाउट एन आंसर, जस्ट डोंट डू अवे विद एन आंसर लाइक दैट. जैसे आपने बी को एक चीज पे बिल्कुल छोड़ दिया, राइट? और ए के बारे में सोचना शुरू कर दिया. सो प्लीज डोंट डू दैट. ओके, ठीक है? अदरवाइज बहुत क्वेश्चंस में प्रॉब्लम हो जाएगी. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. दिस इज इजी. Farthest in meaning. Farthest is almost not related. हाँ. So the answer would be
एक मिनट, डिक्शनरी मत खोलना। सबरी को क्या होगा? Jargon, yeah, it's not a jargon, but I don't know what moniker is. So या तुम्हारी अप्रोच बिल्कुल सही है। सी Jargon एपिथेट, moniker is also nick. हाँ ये सारे निकनेम्स है, बट अगर हाँ तुम्हें ये पता है ना एपिथेट इज अ निकनेम, तो जार्गन क्लियरली दिख जाएगा कि जार्गन Hmm. इज लाइक दोस टेक्निकल टर्म्स फॉर समथिंग, इंडस्ट्री जार्गन वगैरह होते हैं ना। हाँ, medical jargon and other. एग्जैक्टली। सो दैट इज द अप्रोच, दैट्स अ क्लियर अप्रोच फॉर दिस क्वेश्चन। और ये जनरली क्वेश्चंस निकल जाते हैं टिल द टाइम किस्मत इतनी खराब ना हो कि हमें किसी का भी मीनिंग नहीं पता। ठीक है, सो जस्ट वन थिंग अबाउट वोकैब क्वेश्चंस। देखो कभी कभी ये ट्रिक चल जाती है कि जैसे मुझे मेन का पता है और एक पता है बिल्कुल ऑपोजिट है, तो वही आंसर होगा। या फिर मुझे 4 में से 3 वर्ड्स दिख गए, देयर आर 2 नेगेटिव, मतलब बिल्कुल ही एक ही डायरेक्शन में जाता हुए वर्ड्स है, तो ऑब्वियसली द रिमेनिंग वन वर्ड वुड बी द आंसर, राइट। एंड फॉर पीपल हु आर गिविंग कैट वन थिंग, एक बहुत ही फेमस फैक्ट है कि कैट में वोकैब नहीं आती है। कैट में तो सिर्फ आरसी आता है, पैरा जम्बल्स, पैरा कंप्लीशन ये सब आते हैं, बट कैट में आरसी आती है, सॉरी वोकैब आती है, ऐसे आती है, ठीक है। आरसी में वोकैब आती है, और आरसी वाली वोकैब का एक चीज और ध्यान रखना, कभी कभी आपसे पूछते हैं व्हाट डज द वर्ड मीन इन द कॉन्टेक्स्ट। Context में, हाँ। हाँ, तो अगर कभी आपके पास ये जिसे कहते हैं ना कि यू आर इन अ डिलेमा कि एक डायरेक्ट डिक्शनरी मीनिंग है और एक कॉन्टेक्स्ट वाला है, तो कॉन्टेक्स्ट मार्क करके आना, ठीक है। तो नेक्स्ट पैसेज, दिस इज अ स्मॉलर वन, ये बस इतना ही है। ठीक है। ठीक है, एवरीवन डन? वैसे पैसेज काफी इजी है, समझ भी आ गया होगा ये तो। ठीक है, शैल आई मूव टू द क्वेश्चंस? Yes, ma'am. Who is typically an unhappy man? Read the question, options. One, A. A. ठीक है, आई थिंक बहुत क्लियरली इसका ए है, यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है। is the right answer. ठीक है, दैट्स राइट। प्रोफेसर कौन है वैसे? Okay, so the professor is not talking. कोई नहीं।
One second. Okay. One-sided direction refers to the pursuit of which of the following? BO, satisfaction one had been deprived of in youth. Yeah. What do others say? Yeah, B only. Okay, yeah. So this one is B. I think ये काफी easy है वैसे passage और questions बहुत सारे हैं. Which one of the following is the correct statement? Drinking helps the unhappy only to. Quite factual though. This question is. Youth motivation moves. Forget the dissatisfaction. Exactly. ये तो मतलब बिना passage के भी हो जाएगा ना? नहीं, किसी दारूबाज से पूछोगे तो बोलेगा सप्लाई में हैप्पीनेस. Supply. Okay, fine. 7. कहा गया. अरे यहीं पर I'm trying to read the chat. ऊपर किसी ने कुछ post किया है. मैम आपकी स्क्रीन चली गई शायद. नहीं है अब है. मुझे क्यों नहीं दिख रही फिर? It's just quiet. हाँ आ गई. Okay. कोटा कोरे थी. क्या? ठीक है. अच्छा. हाँ अच्छा, ये वाला बताना था. एक मिनट. नेग्लेक्ट. I think ये options पढ़ के समझ में आ जाएगा कि कौन सा negate कर सकते हैं, कौन सा बच जाएगा. C. Exactly. Neglect of health? No, not really. हाँ सी हुआ. Moral value, sedentary way of life, ये ना बहुत मतलब I would say generalistic से जो आजकल चीजें चल रही है ना उनके बारे में है. अच्छा. तो बहुत क्लियरली इसका आंसर ना आपको एलिमिनेशन से मिल जाएगा कि सी है. ओके. सो नेक्स्ट. हाँ ये बस 2 स्लाइड का है. या फिर डू यू गाइस वांट कि आज आई हैव कंपाइल्ड अ फ्यू इडियम्स, वो करने हैं पहले. ठीक है. आई कैन डू एनीथिंग यू वांट. तो चलो ठीक है, इडियम्स करते हैं अभी थोड़ी देर के लिए. हाँ वी हैव 20 मिनट्स ना, 20 मिनट्स इडियम्स करते हैं. कैन यू सी माय स्क्रीन? हाँ. ओके. सो सबसे पहले तो ये वाले जो क्वेश्चंस हैं, कैन यू सी क्वेश्चन तो- नंबर 1 to 4? थोड़ा जूम कर दो बहुत प्लीज. छोटा है, दिख नहीं रहा है. बेटर? नो. नहीं मैम थोड़ा और. अभी ठीक है? हाँ काफी बेटर. अभी मेरी स्क्रीन से बाहर चला जाएगा अगर मैंने कोशिश की तो. ठीक है. नहीं. ठीक है. सो दीज क्वेश्चंस, दिस इज वोकैब. देयर इज जस्ट वन थिंग. इसमें जनरली आपको कॉमन कंफ्यूजिबल्स गिवन होते हैं, राइट? सो इन कॉमन कंफ्यूजिबल्स व्हाट हैपेंस इज, फर्स्ट आई विल टेल यू किस किस एग्जाम्स में आते हैं. कॉमन कंफ्यूजिबल्स 1 आपको टेस्ट नेट या फिर कहीं पर भी आ सकते हैं. अब देखो डिफिकल्टी का लेवल एग्जाम टू एग्जाम वेरी करता है. दैट्स वन. सेकंड थिंग, कॉमन कंफ्यूजिबल्स आपको कहीं भी आ सकते हैं. जैट तक में आते हैं, आईएफटी में आ चुके हैं, राइट? जैट तक में आते हैं. जैट में थोड़ा लेवल अच्छा आता है. इसमें क्या होता है कि जैसे एक क्वेश्चन में पांच आपको वो कैब के क्वेश्चन होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अनीता वोर अ ब्यूटिफुल ब्रोच ऑन द लेपल ऑफ हर जैकेट. अब इसमें क्या होता है कि आप जैसे 5 हैं, आप किसी भी एक या 2 के बारे में श्योर हो जाओ कि इसमें तो ए आना है या बी आना है, फिर उसके हिसाब से हम एलिमिनेट करके ऑप्शन चूज कर लेंगे. सो जस्ट डू दिस क्वेश्चन नंबर 1 to 4. अभी दिख रहे हैं चारों क्वेश्चंस? जस्ट डू दीज, हैव आंसर्स, फिर उसके बाद डिस्कस करते हैं चारों.
ओके, तो क्वेश्चन 1 का आंसर क्या है? डी नहीं है, डी। डी। ओके ओके, सो सबसे पहले आप ये बताओ, इसमें सबसे इजी किस किस को फिक्स करना है? आई से सी और डी। एडवाइस वाला इज इजी, क्लाइमेटिक वाला इज इजी। तो सी में क्या होगा? ये सी वाला होगा, मतलब ए ए ए होगा। तो चलो ए किस किस में है? ए और बी हटा दो, बचा मेरे पास सी और ई। अच्छा नहीं, सी डी और ई तीनों बचे अभी। हाँ, सी डी ई बचेगा ना। ठीक है, फिर उसके बाद अगर हम देखें तो द लास्ट सीन प्रोवाइडेड अ क्लाइमैक्टिक या क्लाइमैटिक एंडिंग? क्लाइमैक्टिक। दैट मींस रिलेटेड टू द क्लाइमैक्स, तो ये ए हो गया। तो दैट मींस ए ओ क्लाइमैक्स सी होगा। यहीं पे मुझे आंसर मिल गया। द आंसर इज सी। बाकी देखो, अगर आपसे हो जाते हैं ठीक हो, तो अदरवाइज छोड़ो ना। ठीक है, सो यहाँ पर सी आंसर हो गया। चलो क्वेश्चन 2 करते हैं। पहला तो करंट ही होगा। हाँ, कौन सा वाला करंट? पहला वाला ए एन टी वाला। ए एन टी वाला करंट। ठीक है, तो वो black बी हो गया। तो मतलब अभी तो ऑप्शन डी एलिमिनेट हुआ है बस। हाँ, ठीक है, अगला वाला एक्सेप्शनेबल होगा ना। हाँ बी होगा। हाँ बी होगा। Exceptionable. दैट्स राइट। सो बी बी हो गया। अभी कौन सा एलिमिनेट हुआ है? ये भी कंसेंट होगा अगला वाला। डी ई एलिमिनेट हो गया अभी हमारे पास। अच्छा, डी हो गया, ए बी सी बचा है। हाँ, अब ये कंसेंट होगा, कंसेंट। हाँ ये कंसेंट हो गया। तो तो बच्चे ए मेरे और बी बच गया। B. अब बट डी कर लेते हैं, फिर हो जाएगा। ऑब्लाइज्ड। ओब्लाइज, दैट्स राइट। तो आंसर क्या हो गया? B. डी वाला। डी आंसर हो अच्छा गया।
Oh, okay. Right. ठीक है, now let's do वो third. भी easy है sanguine. She wants to bite back the eye. So what will you bite back? An ironic comment या फिर a caustic comment? Caustic is harsh. हाँ फिर तो caustic होगा because you want to Caustic say it, होगा, so you B. just bite back. तो अभी मेरे पास सिर्फ D एलिमिनेट हुआ. अब इसका ना थर्ड स्टेटमेंट देखो. आई एम नॉट एडवर्स टू या फिर आई एम नॉट अवर्स टू. Averse. अवर्स, डेफिनेटली इसका अवर्स होगा. तो इसमें देखो थर्ड पे तो मुझे बी ही आना चाहिए, तो मेरा ए एलिमिनेट हो गया, सी एलिमिनेट हो गया. ठीक है, तो मेरे पास ए, सी और डी एलिमिनेट हो गए. ऑप्शन सी कौन कौन से बचे मेरे पास? बी और E. B, E. बी ऑप्शन बचा मेरे पास. यहाँ पे और कौन सा बचा था? E. E. बी और ई बचा. तो चलो बी और ई में देख लेते हैं क्या फर्क है. सीधा उसी स्टेटमेंट डी स्टेटमेंट देख लो. अब कौन सा? डी इसमें ये वाली देखो. दे हर्ड द बेल्स फीलिंग फार एंड वाइड. तो यहाँ कौन सा होना चाहिए? बी वाला P होगा. B वाला होगा. बी वाला होगा. पी ई ए एल आई एन जी पीलिंग का मतलब होता है रिंगिंग feel. लाउडली. और फीलिंग Feel वो तो वाला होता होता है. है टू फील. छीलना. राइट. तो आंसर क्या हो गया? लास्ट कौन सा? Yeah. नहीं B. B. तो भी मतलब हाँ आंसर बी बी हो गया. राइट. सो आई एम डन. एक सेंटेंस ना ही करना पड़े. ठीक है. ठीक है. नाउ लुक एट फोर्थ. इसमें तो इसमें लास्ट सब सेंटेंस देख लेता है. हाँ हाँ हाँ, सबसे पहले लास्ट सेंटेंस देख लो क्या होगा. अनसोशल. Unsocial. अनसोशल. नहीं, अनसोशेबल. Unsocial. हाँ अनसोशेबल, अनफ्रेंडली ना. बताओ क्यों? It Something means which can be changed, like unchangeable character trait. It's unsociable. Could not deal with something, right? तो ये unsociable हो गया, मतलब A होगा. यहाँ पे मेरे ऑप्शंस चले गए. B और D में ड्रॉप कर सकती हूँ. हाँ. ठीक है. A C E मैम बच सील से तो एलिमिनेट कर सकते हैं. क्या? कहीं से भी कर ले मिनट. हाँ हाँ, सी कहीं से में भी. HORD. तो सी वाले से तो सीधा तो सभी गायब हो जा रहा है ना. फिर से तो सिर्फ बी ही रह जा रहा है क्योंकि बी में ऑप्शन ए है. नहीं 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 C नहीं, में आप सॉरी A सॉरी मार्क करोगे? नहीं बी बी. B मार्क करोगे. हाँ राइट, दैट्स राइट. C में B होगा. हाँ तो तो कौन बी कौन भी से गया ऑप्शन? फिर. B चला गया. तो मेरे पास A ही तो बचा. हाँ यही होगा. B A B B A. That's the answer. A. हाँ ठीक. डिफ्यूजिंग भी Okay. हाँ, डिफ्यूजिंग भी आप देख सकते हो. बिकॉज इसमें क्या होगा, फर्स्ट वाला जो डिफ्यूजिंग, सेकंड वाला जो डिफ्यूजिंग है, इसका मतलब होता है स्प्रेड ओवर अ वाइड एरिया. हाँ डिफ्यूजन जो होता है. और डिफ्यूज, दैट वन इज DE फ्यूज. हाँ, डिफ्यूज, दैट्स राइट. राइट. सो वो एनीवे नहीं चाहिए मुझे. ठीक है. सो नाउ व्हाट आई विल डू इज, आई नो मतलब vocabulary. See, anyway, are you guys working on vocabulary? What are you doing exactly? हिंदू. हिंदू. ठीक है, दैट्स गुड. जस्ट एक चीज याद रखना, when I talk about, एक चीज याद रखना कि when I talk about vocabulary, सिर्फ पढ़ने से कुछ नहीं होगा. You should make a note of the words you are coming across. और जो आजकल के फेमस वर्ड्स है ना, सबसे ज्यादा वही आते हैं. ठीक है. मेक अ नोट ऑफ देम एंड व्हेनेवर यू कम अक्रॉस अ वर्ड, उसके बारे में थोड़ा रिसर्च करो ऑनलाइन एंड राइट द मीनिंग्स इन अ डायरी. और उनको बार बार थोड़ा रिवाइज भी करते रहो. अपार्ट फ्रॉम दैट, फॉर पीपल गिविंग टेस्टनेट या फिर IIFT और स्नैप, इन सब एग्जाम्स में ना आपको कभी कभी इडियम्स भी आते हैं.
इनफैक्ट idioms are a favorite of tips. कई बार बहुत idioms आते हैं. So what are idioms? Sayings, right? Something which is a saying has become famous over a period of time, right? But उसका literal meaning नहीं होता. So I have a few questions without options. Okay, so number 5. A chain is as strong as its weakest link. What do you think is the meaning? सोच के देखो. इसका ये होगा कि chain is as strong as weak. Basically it's very weak. हाँ. जितना मतलब लास्ट तक वो मेंटेन रहता है, लास्ट में जितना बचा रहता है उतना ही उसका कैपेबिलिटी है, लाइक उसकी स्ट्रेंथ है. इसका मतलब है It's not that strong. yeah, a group can It's only like be each and every link is important. अगर एक भी link टूट जाता है, then the chain is not strong. absolutely. Who was this? Akshi. हाँ, so इसका आपका मतलब होता है a group can only be as successful as its weakest person. Right, yeah. हाँ, exactly. हाँ. The apple does not fall from the tree. ये तो सुना है. हाँ. So एक आपने वो saying सुनी होगी like father like son. हाँ. Right, so the apple does not fall Similar. from the tree. हाँ, ये similar चीज है. जब कोई बच्चा बहुत ही similar चीज करता है ना पेरेंट्स के, तब हम बोलते हैं oh the apple does not fall far from the tree. ठीक है, so it's like children show qualities similar to their parents. ये नेक्स्ट वाला आजकल के सिनेरियो में बहुत ही वैलिड है. Familiarity breeds contempt. It makes sense these इसका days. होता था कि मतलब when you know something like too Too closely, well, yeah. too closely, then leads to like You you lose disrespect. Not respect. respected enough. हाँ, that's right. Once bitten, twice shy. ये तो पता है. It means once bitten, twice shy. इसका एक पैरेलल हिंदी में भी है. हिंदी में like मुहावरा है. one Like unpleasant and- experience, we don't do it. Yeah, so Twice. yeah, when you have an unpleasant experience, you don't want you're to extra careful. you're extra Oh. careful. इसका एक अच्छा, हिंदी तो पैरेलल भी है, ढूंढना. मिजरी Okay. लव्स कंपनी. अच्छा, हिंदी पैरेलल. इसका हिंदी पैरेलल है दूध का जला छाछ को भी फूक फूक कर पीता है. ओ भाई. स्कूल में अगर कभी पढ़ा हो तो. नाइस. फिर से बोलना. दूध का जला छाछ को भी फूक फूक कर पीता है. नाइस. ओके मैम, थैंक यू. मिजरी लव्स कंपनी. ओहो, दोस्तों की याद आ गई. This It's is like when we are unhappy, then we are happy that Yes, others are also not happy. yes, that's right. That's a very mean one. So unhappy people or people who are unhappy generally feel good when they know others are also unhappy. वो sadistic का वो है, अपनी tendency है. Exactly. Okay. No man is an island. मतलब लॉकडाउन में नहीं जी वाला सकते. dependent on everyone else, like Yeah, मतलब like When no one is truly मतलब खुद Yeah. self-sufficient नहीं होता. So it मतलब हाँ. we need a community, so हाँ, it's like- हाँ. people generally उसको किसी do का bad. साथ चाहिए. हाँ, people generally Oh. do badly alone. साथ चाहिए. हाँ. अरे Never Chip on your साथ. shoulder. Means like holding a grudge or grievance against someone. That's right. Holding a grudge or grievance against someone. Come hell or high water. Come hell or high water का मतलब होता है कुछ भी हो जाए. Whatever it's difficult. like do or die. So it's It's when something you're determined to do you're something. determined to do in- something. I'm gonna step out. Come hell or high water. अच्छा. You should know it, but yeah. ये जो नेक्स्ट है ना, टेस्ट ऑफ योर ओन मेडिसिन, इसको ना आजकल के वर्जन में थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया है. पीपल यूज इट अ लॉट. यू शुड हैव अ टेस्ट ऑफ योर ओन पॉइजन. अगर सुना हो तो. Yeah. Yeah, so taste of your own medicine means
treating the other person the way Yeah, they तुमने you are जैसे treating ट्रीट way. किया you. तुम्हें वैसा ही मिल रहा है. एग्जैक्टली. ये नेक्स्ट वाला तो सुना होगा, गोल्डन हैंडशेक. इट्स अ वेरी कॉर्पोरेट टर्म. नहीं ये नहीं It's like a सुना. It's payment when period जब क्या कोई होता है, कोई रिटायर होता है. नहीं 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 नहीं, रिटायर अच्छा. होने When वाली पेमेंट नहीं है. it's like when you get when fired or someone something. completes यस यस. सो बेसिकली या तो कोई जल्दी रिटायर, टाइम पे रिटायर नहीं कर रहा हो, या तो कोई जल्दी रिटायर कर रहा हो, या फिर किसी को जॉब से निकाल दिया. द पर्सन इज गिवन अ lump sum amount that's known as a golden handshake. it's basically when someone completes some amount of time in a company तो उसको एक amount pay किया जाता है. It's No, no, different for each. no, that's gratuity and not golden handshake. Is there a difference between these two? Yeah. So gratuity is something जब आपको एक time खत्म हो जाता है and you're still हाँ, with the that's- company, gratuity is given to you. Golden Okay. handshake is either you are fired or you are given an early retirement और आपको जाने का पैसा दे रहे हैं. So it's basically somebody is laid off from the company and हाँ. In fact, this happened recently जब आपका ये वोडाफोन और आइडिया का merger हुआ था. Lot of people at Vodafone and Idea, both the companies were given a golden handshake. okay. हाँ. Next, to be in doldrums, Oh, ना depressed. Depressed. right? Bad time. Right. Litmus test. It's like an indicated test. No, Yes, it's like an करना effective चाहिए way या of नहीं करना proving चाहिए. something, like an Right. effective way of proving that you're qualified to do this or you have that particular skill or quality. Absolutely. Bone of contention. Litmus test बताना एक और बार. Litmus test is basically when you conduct a test कि आपको कुछ करना चाहिए या नहीं, to check if something is to be done or not. नहीं हाँ मतलब how do you say it in a sentence? Yeah. So I would like to do a litmus test before I actually begin with the project. अच्छा. Bone of contention तो बहुत commonly used है. It's like Yeah, disagreement. like a main reason of disagreeing to something. Yes, so basically किसी चीज के ऊपर continuously जो point पे disagreement है उसको बोलते हैं bone of contention. Okay, to pour oil on troubled waters. It's चले पे basically to नमक make an amend between मतलब किसी बात को सुलझा लेना. Yes. Making things stable. हाँ, Yeah, that's right. So this to means resolve a disagreement. yeah, to settle a disagreement with words. ठीक है. Get a raw deal. to like receive like bad behavior or poor treatment. Yes, poor treatment. Hit the nail on the head. Exactly. मतलब Sir, on the point. To Yes. suffer. So doing or saying something which is absolutely right, या फिर precisely right. ठीक है. So these are the meanings. So what I'll do is see ये जो exercise है ना पूरी जो मैं आगे scroll कर रही हूँ. ठीक है. This is a vocab exercise. इसमें कुछ questions हैं idioms के, analogy के. I'll send it to you today. Please do them. Ma'am, please send these idioms also. हाँ मैं पूरी exercise आपको ऐसे भेज दूंगी. मैम एक बार bone of contention का मतलब कुछ बता दो. See, bone of contention is something which is basically a point on which there has been a disagreement for long. Okay. Yeah, So, that's bone of contention. Is it like you continuing that disagreement for long, or is that Yeah, already? so basically, see, generally bone of contention आपका कहाँ use होता है? कि let's say something like, so this point has been a bone of contention and we are not able to come to a conclusion. Oh, okay. Yeah, that's what. Can it be a person also? Not really. Not really. Like if there's a disagreement and there's one person because of whom you come to that disagreement. You won't really call a person bone of contention, but a particular reason or a particular point. But what if that person is the reason? Yeah, so you don't have to use that phrase then. Okay.
हाँ तो हम थोड़ा सा लिटमस टेस्ट में लाइक मतलब बोल सकते हैं ना किसी प्रोजेक्ट के पहले का एक टी हाँ टेस्ट, हाँ दैट विल बी सक्सेस और नॉट, मतलब ये लिटमस टेस्ट में पता ये चलेगा लिटमस इस टाइप टेस्ट होगा. इनफैक्ट लिटमस टेस्ट इज एक्चुअली अ साइंटिफिक टेस्ट. हाँ वो तो है Yeah, it's का। हाँ हाँ some वही। Yeah, so basically, acidity test. yes, yes, that's right, that's right. Okay, guys, लिटमस so टेस्ट बहुत में होता है. क्या? हाँ मैम अगला बताओ. हाँ, मैं ये बोल रही थी कि अभी आपकी एक और क्लास है ना, so I'll send the sheet to you. आप लोग ये questions कर लेना. Keep working on your vocabulary, right? I hope कि आप लोग words भी इकट्ठे कर रहे हो और जो भी whatever you get about your vocab and everything, keep reading. Next class, मैम vocab के लिए कुछ और बता दो थोड़ा, ठीक है, और vocab के क्या लिए. क्या कर सकते हैं. हाँ, एक चीज आप vocab के लिए कर सकते हो. एक तो मैंने बताया अपनी पर्सनल डिक्शनरी आपको बनानी है, right? Apart from that, you can actually let's say, are you reading some books these days? नो मैम. No. इतना Yeah. टाइम नहीं है कि एक जीके बुक से हटे कि यहाँ कुछ और पढ़े. अच्छा, जीके पढ़ रहे हो, ठीक है. मनोरमा में होते हैं ना आर्टिकल्स, तो आई रीड आर्टिकल्स. क्या? मनोरमा के आर्टिकल्स पढ़ लेते हैं. ठीक है, सो जहां से भी हाँ जो भी वर्ड्स मिले कलेक्ट देम, या फिर यू कैन एक्चुअली रीड ऑनलाइन. अगर आपको जैसे इडियम्स तो देखो बहुत सारे होते हैं, राइट? यू कैन डू सम वोकैबुलरी टेस्ट. बाकी आई विल आल्सो कीप सेंडिंग देम टू यू. Apart from that, what you can do from vocab is, why don't you download a few apps, right? There is this vocab 24, Merriam Webster जो डिक्शनरी है, उस पे एक vocab का क्विज रोज आता है. मतलब रोज के आप दिन में कितने भी दे सकते हो, 3-4 उसके लेवल्स हैं, तो आप वो कर सकते हो. सो Merriam Webster is anyway a dictionary. ये आप डाउनलोड करो. इसमें वर्ड ऑफ द डे भी आता है. यू ऑल्सो हैव वोकैब टेस्ट. उसमें लेवल्स होते हैं, बेसिक, एडवांस्ड और ये सब करके, ठीक है. एक आपका ऐप है वोकैब 24. सी, इस ऐप में थोड़ी बहुत गलतियां होंगी बट इतनी ज्यादा नहीं होती. यू कैन यूज इट कि आप थोड़े, क्या टाइप कर रही हूँ मैं, यू कैन एक्चुअली यूज इट एट टाइम्स. ये बार बार ना उससे चेंज हो जाता है, ऑटो इनकरेक्ट से, राइट? सो ये आप एप्स डाउनलोड कर लो. आप यू कैन जस्ट कीप प्लेइंग, या फिर ऑनलाइन स्क्रैबल डाउनलोड कर, इफ यू हैव ओनली इफ यू हैव टाइम, यू कैन कीप डूइंग इट. और अगर बहुत ज्यादा टाइम है तो यू कैन स्टार्ट दिस बुक, वर्ड पावर मेड इजी बाय नॉर्मन लोइस, हाँ वो तो कर रही है. अगर पढ़ रहे हो तो, राइट? बट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है, ज्यादा से ज्यादा चीजें याद रखो, वर्ड्स को लिखो, लिस्ट बनाओ, एंड कीप कमिंग बैक टू इट, कीप रीडिंग देम. क्योंकि एक बार अगर चीजें याद रखने की आदत पड़ जाएगी, वो लॉन्ग रन में इट विल बी गुड फॉर यू. ठीक है. ठीक है सो मैम. विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, आई थिंक नेक्स्ट क्लास का आपका टाइम हो गया होगा एंड सर वुड बी वेटिंग. ठीक है गाइस, तो चलो, हैव अ गुड डे, You too. Thank you. गुड इवनिंग. इन फैक्ट हैव अ गुड इवनिंग. एंड कोई नहीं मैम, कल हो जाएगा. गुड डे. कल छुट्टी है? छुट्टी है अब तो. अच्छा, ओके ओके फाइन. सम ऑफ यू हैव योर ऑफिसेस नो इवनिंग में 6 o'clock. Yes, ma'am. Yeah.